Welcome students. Welcome to the lecture number 2 of MySQL revision tour. So let's begin beta. In the previous lecture, we have learned about some database terminologies, right? And all the database terminologies are explained to you with the help of an example. Suppose this is a table which I use to explain you about the database terminologies, right? So the terms which we have discussed in the previous lecture are, the first one is a relation. So what is a relation? A relation is basically a table, right? So in database terms, a table is known as a relation. After that, we discuss about the tuple. A row in a relation is technically known as tuple. Attribute. So in database terminology, a column in a table is known as an attribute. And the cardinality is basically the total number of rows present in a table. And after that, degree. The degree is basically the total number of attributes present in a table, that is total number of columns present in a table. So if we see that, what is the cardinality of this table? As we know that cardinality is basically the total number of tuples in a relation, right? So total number of tuples, that is rows in a relation. So over here there are 1, 2, 3, 4 rows are present. So the basically the cardinality in this table is 4. Okay, we don't consider this heading row because this is not included in the cardinality. Okay, you have to include only those records which contains the data of the employees. And then the next thing is degree, the total number of attributes, that is column present in a relation. So basically the total number of columns are 1, 2, 3, 4. So there are 4 columns present in this table or relation. So cardinality is basically the total number of tuples and the degree is basically the total number of attributes. And the last thing is domain. So domain is basically a pool of values from which the value for a particular field is obtained. So suppose if the company has only 3 departments like sales, finance and accounts, so obviously if we store information of any employee in the table, then we have to put either sales or finance or accounts in the department table. We can't put any other department. We can't put purchase department because there is no purchase department in the company, right? So this is the set of these 3 values, that is sales, finance and accounts, is basically the domain for the field department. Now let's move to the new topic. The topic which we are going to discuss today is key constraints. Okay, so what is the constraints? Constraints means limitation. Okay, so let's explain ki bhai, what is a limitation, what is a constraint. So देखो एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose you have a bus pass with you, ठीक है? In that bus pass there is a validity mentioned, ठीक है ना? That वो bus pass किस time period से लेकर किस time period तक valid है. Okay, so जब भी आप बस में travel करेंगे, तो whenever you show the bus pass to the conductor, he will definitely check the validity of that card first. ठीक है? So अगर जो basically टुडे की आज की जो डेट है, अगर वो सपोज उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर आ रही है, देन ओके योर पास इज वैलिड. बट इफ आज की डेट उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर अगर नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली ही सेज दैट योर पास एक्सपायर्स, दैट पास इज नॉट वैलिड. सो दिस इज अ लिमिटेशन कि भाई whenever you travel in the bus, the pass is must be valid. पास अगर वैलिड होगा तभी आप उसमें ट्रेवल कर पाएंगे. सो दिस इज अ लिमिटेशन. So now we are going to discuss some limitations that are used in the database. Now first limitation, that is first key constraint which we are going to discuss, is known as the primary key.
So before discussing the primary key, let's take an example to understand the importance of primary key, right? So suppose there is an institute जो कि different subjects पे coaching provide कर रहा है, right? अब suppose मान लीजिए in that institute एक physics का बैच है, ठीक है, और इंस्टीट्यूट वालों ने क्या कर रखा है, बेसिकली दे मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फिजिक्स स्टूडेंट्स. अच्छा, उस रिकॉर्ड के अंदर व्हाट दे हैव डन, उन्होंने नेम, एड्रेस एंड फोन, दे हैव स्टोर्ड दीस थ्री इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द फर्स्ट स्टूडेंट इज हर्ष, he lives in A1 Kirti Nagar and his phone number is this. The second one is Vaibhav, his address is this, और उसका phone number दे रखा है, then Pooja, then Vaibhav, and suppose there are many more students in that. अच्छा, अब हुआ क्या कि suppose मान लीजिए this, ये जो वैभव जो है, he is not coming for the last 2 weeks to attend the classes. So physics के जो टीचर थे, they informed the office person कि भाई the Vaibhav is not attending the class for the last 2 weeks. So please inform his parents. तो ऑफिस वालों ने कहा okay, we will inform the Vaibhav parents and as well as we send a short attendance letter to his address. उन्होंने कहा अच्छा जी, करो जी ये काम. अब हुआ क्या कि जब उन्होंने फिजिक्स बैच को चेक करना शुरू किया, so initially they found the record of Vaibhav. अच्छा, अब छुट्टियां तो ये वाला वैभव मार रहा था, लेकिन इनिशियली व्हेन दे स्टार्ट सर्चिंग द रिकॉर्ड ऑफ वैभव, उन्होंने इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूज किया. उन्होंने कहा यार ये रहा वैभव जो फिजिक्स बैच में पढ़ रहा है एंड ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास फॉर द लास्ट 2 weeks. सो इन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके घर फोन कर दिया और घर फोन करके बता दिया कि भाई देखिए जी, आपका बच्चा जो है वो लास्ट 2 weeks से आ ही नहीं रहा है पढ़ने के लिए. एंड अलॉन्ग विद दैट दे सेंड अ लेटर of short attendance to his house. अच्छा, अब क्या हुआ कि भैया करना था इस वैभव के घर, फोन कर दिया इसके घर में. अब ये बेचारा पढ़ के जब घर वापस आ रहा था, तो जैसे बेचारा घर पहुंचा, the parents start shouting on him कि भाई why you are not attending the class for the last 2 weeks. तो वैभव ने कहा कि भाई how you can say that, भाई मैं तो 2 हफ्ते क्या, मैं तो रेगुलर स्टूडेंट हूँ, बेसिकली मैं तो रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहा हूँ. When Vaibhav said this, तो parents ने बोला अच्छा, if you are attending the class regularly, then why they called us that you are not attending the class for the last 2 weeks, and along with that they have sent a short attendance letters to us. तो वैभव ने कहा नहीं भाई, मैं तो भाई अटेंड कर रहा हूँ, भाई मैं तो रेगुलर जा रहा हूँ. तो पेरेंट्स ने बोला चलो भाई, अच्छा अगर ऐसी बात है चल भाई इंस्टीट्यूट चलते हैं एंड वी विल फाइंड आउट कि भाई वाई ऐसा क्यों हुआ. चलो जी. So when they all reach to the institute and tell the office person about the case, then he start checking what is the problem in that, and they call the teacher. The teacher also says that yes यार, ये वाला वैभव तो आ ही रहा है, मैंने तो आपको दूसरे वाले वैभव के लिए बोला था कि भैया वो 2 हफ्तों से नहीं आ रहा है. So they realize कि यार हमें तो इस वाले वैभव के घर फोन करना था, बट बाय मिस्टेक हमने इस वाले वैभव के घर फोन कर दिया. अच्छा, अब बेसिकली ये तो प्रॉब्लम हो गई. चलो अभी तो जैसे जैसे उन्होंने मामला निपटा दिया, लेकिन उनके माइंड में आया कि यार ये प्रॉब्लम तो इन फ्यूचर में भी स्टिल एग्जिस्ट कर सकती है. सो हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, सो उन्होंने देखा कि यार इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर इज देयर एनी फील्ड जिसका डेटा डुप्लीकेट ना हो, बिकॉज नेम तो लोगों का डुप्लीकेट हो सकता है. नेम ऑब्वियसली, जैसे सपोज मान लो एक से ज्यादा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे इस केस में देयर आर 2 स्टूडेंट हुज नेम इज वैभव. सिमिलरली एड्रेस भी सेम हो सकता है. देयर इज अ सिचुएशन, सपोज मान लो अगर एक ही घर से 2 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर एड्रेस इज सेम. सिमिलरली फोन नंबर भी सेम हो सकता है. अब कैसे सेम हो सकता है? देयर इज अ सिचुएशन, सपोज मान लो स्टूडेंट्स का डेटा है और 2 स्टूडेंट्स एक ही घर से आ रहे हैं. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, पेरेंट्स अपना नंबर दे देते हैं कि भाई इफ यू वांट टू कॉल तो आप हमारे नंबर पे कॉल करना. सो ऑब्वियस बात है, जब एक घर से 2 बच्चे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका पेरेंट्स का नंबर तो सेम होगा. सो ऑब्वियसली व्हाट आई हैव सीन दैट कि भी इन 3 फील्ड्स को जब मैंने देखा, तो आई कांट एश्योर कि भाई इनमें से कोई भी एक ऐसी फील्ड होगी जिसके अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं आ सकता होगा. भाई ऐसा मैं श्योर नहीं कर सकता, बिकॉज देयर मे बी अ सिचुएशन जहां पे एड्रेस भी सेम हो सकता है, फोन नंबर भी सेम हो सकता है, एंड नेम तो ऑब्वियसली सेम हो ही सकते हैं यहाँ पे.
सो मैंने कहा कि यार फिर इस टेबल के अंदर आखिर ऐसा क्या चीज ऐड करी जाए जिससे कि ये हो कि भाई किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को वी विल यूनिकली आइडेंटिफाई, उसको हम एक यूनिक वे में आइडेंटिफाई कर सकें। सो अब हमने क्या किया, अब हमने इस टेबल को थोड़ा मॉडिफाई किया, राइट? और हमने इस टेबल के अंदर एक न्यू फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी नेम्ड एज एडमिशन नंबर। सो अब ये जो फील्ड हमने इंट्रोड्यूस करी इस नेम इज एडमिशन नंबर। सो इसमें हमने क्या कहा कि भाई देखो, चाहे एक ही घर से दो बच्चे क्यों ना आ जाएं, लेकिन सबके एडमिशन नंबर सबके अलग अलग रखेंगे। एज यू ऑल नो दैट, सपोज मान लो अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आप और आपके सपोज मान लो ब्रदर है या सिस्टर है, दे आर ऑल स्टडीइंग इन द सेम स्कूल। सो ऑब्वियसली चाहे आप एक ही घर को बिलोंग करते हो, बट ऑल ऑफ यू हैव द डिफरेंट admission number. Admission number is not same for every student, right? So admission number will be different. So now the case is resolved obviously कि भाई अब admission number हमने field जो लगाई है वो basically यही सोच के लगाई है कि भाई सारे students का admission number अलग अलग होगा, ठीक है जी? So अब हमने देख लिया यहाँ पे कि भाई ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स का हमने एडमिशन नंबर अलग अलग रखना है, वो एडमिशन नंबर हम सेम नहीं रखेंगे, ठीक है? अच्छा, अब हमने एडमिशन नंबर नाम की फील्ड ये सोच के लगा दी कि यस कि भाई सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर हम डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे, किसी भी हालत में सेम नहीं रखेंगे। अच्छा, अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की एंट्री होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अच्छा, अब सपोज बाय मिस्टेक अब मुझे एक स्टूडेंट की एंट्री डालनी थी, सपोज मान लो 1404, ठीक है? जैसे सपोज एक स्टूडेंट की एंट्री मैंने यहाँ पे एडमिशन नंबर डाल दिया, दैट इज 1401, ठीक है? एंड सपोज देयर इज अ नेक्स्ट स्टूडेंट जिसकी एंट्री में डाल रहा था एंड बाय मिस्टेक मेरे को 1402 डालना था, बट बाय मिस्टेक मैंने मेरे से यहाँ पे 1202 डल गया। भाई गलती से डलना था, मेरे से डल गया गलती से। अच्छा, उसके आगे भी मैं एंट्री करता रहा तो मैंने अपना आगे की एंट्री मैंने ठीक डाली 1403, बट बाय मिस्टेक तो जो मेरे से गलती होनी थी हो गई, ठीक है? सो मैं जैसे हमने देखा कि हम और स्टूडेंट्स की डिटेल डाल रहे हैं और बाय मिस्टेक 1402 के जगह मैंने 1202 डाल दिया। अच्छा, अब हमने तो बेसिकली एडमिशन नंबर नाम की फील्ड ये सोच के ऐड करी थी दैट वी आर नॉट गोइंग टू एंटर एनी डुप्लीकेट डेटा इन इट, बट बाय मिस्टेक मुझसे तो डेटा एंटर हो गया। अब देखो काफी गलती हो गई, क्योंकि भैया अब इस टेबल के अंदर, इस फिजिक्स टेबल के अंदर देयर आर टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम एडमिशन नंबर। सो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को मैं कैसे रोकूं? वैसे मैं अपने मन से तो नहीं चाहता था कि भाई मैं गलती से एडमिशन नंबर सेम डाल दूं 2 बार, लेकिन बाय मिस्टेक मेरे से गलती से एडमिशन नंबर 2 बार डल गए। सो नाउ अब मुझे एक रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन लगानी है दैट बाय मिस्टेक मैं एडमिशन नंबर में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू ना डाल पाऊं। सो हाउ आई कैन डू दैट? So if I want to do that, if I want to put a limitation on this admission number that I can't enter any duplicate value in it, so what I will do, I will put a constraint name as primary key in the on this field, ठीक है? So admission number के ऊपर मैं क्या करूंगा, I will simply put a key constraint and that key constraint is primary key. So once this constraint is applied on the admission number, तो उसके बाद क्या होगा, if by mistake अगर गलती से भी मैंने ऐसा रिकॉर्ड एंटर कर दिया which already exists in this field, the system will not accept this record. As soon as I enter the data of this record and press enter, the system will show me immediately a message, an error message, which shows that this data already exists or this data violates the rules of the primary key, ठीक है? तो आपका ये रिकॉर्ड एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो देखो बेस्ट थिंग क्या हो गया, अगर मान लो मैंने ये टेबल बनाया और मैंने एडमिशन नंबर पे प्राइमरी की डाल दिया, सो अब सिस्टम अपनी तरफ से एक चेक रखेगा कि भाई इस एडमिशन नंबर वाली फील्ड में कभी भी डुप्लीकेट डेटा एंटर ना हो बिल्कुल भी। और अगर बाय चांस गलती से भी यूजर ने कोई डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी तो इमीडिएटली उसी समय यूजर को रोककर वो उसको एरर दिखा देगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पुटिंग अ प्राइमरी की इन द टेबल और इट इज अ मस्ट। देखो सीधी सी बात है, कल को मुझे किसी बच्चे का रिकॉर्ड अगर सर्च करना होगा तो आई कांट सर्च इट बाय नेम, ठीक है?
एड्रेस के हिसाब से नहीं सर्च कर सकता, फोन नंबर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बोला फोन नंबर से लोगों के डबल, जैसे सपोज एक ही घर से अगर 2 बच्चे आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली देयर फोन नंबर इज सेम. सो इन दैट केस द ओनली थिंग जिसके द्वारा मैं ये काम कर सकता हूं दैट इज एडमिशन नंबर. सो ऑब्वियसली आई हैव टू इंश्योर दैट एडमिशन नंबर के अंदर किसी भी हालत में डुप्लीकेट वैल्यू ना जाए. सो हाउ वी कैन डू दैट? बाय पुटिंग द प्राइमरी की कॉन्स्टेंट ऑन द एडमिशन नंबर. सो अगर हमने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना दिया, देन उसके बाद क्या होगा, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली टेक केयर कि भाई इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज कभी भी एंटर ना हो, और गलती से अगर हम एंटर कर भी देंगे तो ऑब्वियसली ही स्टॉप्स अस एंड शोज अस अ मैसेज कि भाई यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की. It is used to uniquely identify a record in a table. So obviously in a table, if a field is set as a primary key, so obviously उसके अंदर values जो आएंगी वो किसी भी हालत में duplicate तो आ ही नहीं सकती. तो जब सारी value unique होंगी तो obviously on the basis of that unique value I can easily identify, I can easily get a particular record. जैसे आप suppose मान लो if you go to a bank और वहां पे जाके आप suppose मान लो you want to withdraw some money or deposit the money. So obviously when you go to the counter you will show him a slip, and what he will do, he will type the account number which is present on the slip in his system. So as soon as he enter the account number and press enter, you know what happened, only your record get displayed in his computer screen. So hua kya, the account number is unique, अकाउंट नंबर इज नॉट डुप्लीकेट. सो अब जैसे ही उसने आपका अकाउंट नंबर डाला, एंटर मारा, सिर्फ यूनिकली उसने आपका रिकॉर्ड निकाल के दे दिया. सो अगर सपोज मान लो अकाउंट नंबर डुप्लीकेट होते तो पता लगा आपने अपना अकाउंट नंबर डाला तो किसी और का डिटेल आ गई, तो ऐसा तो नहीं होता ना वहां पे कभी भी. सो ऑब्वियसली प्राइमरी की हमने जिस फील्ड को बनाएंगे, जिस फील्ड के द्वारा हमें ये कंफर्म हो कि यार इसके अंदर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज एंटरटेन नहीं करनी है, सो उसको हम प्राइमरी की बनाएंगे. और वंस वी मेड इट अ प्राइमरी की तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन द टेबल. The next thing is that it does not allow duplicate values as well as null values in the specified field. As I already told you, once you set a primary key in a particular field, that field does not allow to enter any duplicate values. ठीक है, उसके अंदर आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते. एज वेल एज नल वैल्यू, यानी कि आप उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते. ठीक है, अब जैसे हमने पिछला एग्जांपल देख रहे थे तो उसमें हमने एक एडमिशन नंबर ले लिया ना, तो हम बेसिकली ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं और उसका एडमिशन नंबर ना डालें. नहीं, इफ यू सेट द एडमिशन नंबर एज द प्राइमरी की, सो वो क्या करेगा, ना तो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड करेगा, एज वेल एज ना ही वो उसके अंदर एम्प्टी वैल्यूज अलाउड करेगा. ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट जब हम कोई टेबल बना रहे हैं तो इन दैट टेबल देयर इज ओनली वन प्राइमरी की प्रेजेंट इन दैट टेबल. हम ऐसा नहीं कि टेबल बनाया उसके अंदर 5-6 प्राइमरी कीज बना ली, नहीं. अच्छा, अब हमारे माइंड में आया, ठीक है, अगर हम एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, बट सपोज देयर आर अदर फील्ड्स आल्सो जिसको हमें प्राइमरी की जैसा बनाना है, सो व्हाट वी विल डू दैट इन दैट केस. ठीक है, सो देयर आर सम अरेंजमेंट जो हम कर सकते हैं, बट जो उसमें ऐसे कुछ हम ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं कि वो प्राइमरी की तरह बिहेव करे, बट प्राइमरी की टेबल के अंदर सिर्फ एक ही होगी. यानी प्राइमरी की कांस्टेंट जब आपने टेबल पे लगाना है तो यू कैन पुट, सिर्फ उसको एक ही कॉलम के ऊपर पुट कर सकते हो. ठीक है, so basically this is the definition of primary key. Now after primary key we move to the next constraint. Okay, so let us understand the next constraint is basically the candidate key. But before understanding the candidate key, let's see this example key, how candidate key is used. Suppose this is a table of employees working in a company, and that table has these fields like e-code for storing the code number of the employee, e-name, DOB for date of birth, basic provident fund number, provident fund amount, PAN permanent account number, जो PAN number होता है ना हम लोगों के पास, the net amount which the employee is getting, and the account number. Suppose if this company has a tie-up with a bank और सारे employees की salary directly transfer हो जाती है उनके account में, so they are maintaining the account number of the employees also. So basically this is a table. Now after seeing that कि भाई हमने employee की information store ये सब करनी है, now we have to decide कि भाई which field
आउट ऑफ दीज फील्ड्स विल बी टेकन एज अ प्राइमरी की। ठीक है, क्योंकि हमने तो पता है कि प्राइमरी की तो टेबल में एक ही हो सकती है। तो अब इनमें से हम किसको प्राइमरी की के लिए सेलेक्ट करें? सो हमारे माइंड में आया है यार, प्राइमरी की के लिए व्हाई नॉट वी टेक ई कोड एज अ प्राइमरी की, क्योंकि भाई एम्प्लॉय कोड सारे एम्प्लॉयज का अलग होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं होगा जिसका सपोज मान लीजिए अपना कोड नंबर ना हो। ठीक है, हर एम्प्लॉय का प्राइमरी की, हर एम्प्लॉय का कोड नंबर होगा और सारा डिफरेंट होगा। अच्छा, सो हमने कहा यार ई कोड इज बेस्ट सुटेबल टू बिकम द प्राइमरी की, राइट। बट फिर हमने देखा कि यार इन दिस टेबल देयर इज वन मोर फील्ड, दैट इज पीएफ नंबर, दैट इज प्रोविडेंट फंड नंबर। अब हमने कहा यार ये प्रोविडेंट फंड नंबर भी तो सारे एम्प्लॉयज का अलग होगा, ये भी सेम नहीं हो सकता, है ना भाई। चाहे सपोज मान लो एक ही घर से दो लोग एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट प्रोविडेंट फंड नंबर, उनका सेम प्रोविडेंट फंड नंबर नहीं हो सकता, राइट। सो प्रोविडेंट फंड नंबर भी यार प्राइमरी की बन सकता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड नंबर के अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी, एंड एज वेल एज प्रोविडेंट फंड नंबर भी कभी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि भाई प्रोविडेंट फंड अमाउंट कट रहा है तो कहाँ जाएगा उसका अमाउंट। अच्छा, फिर ध्यान में आया कि भैया इन दिस टेबल देयर इज वन मोर की, दैट इज पैन, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर। जैसे पैन नंबर होता है ना हम सबका, तो हमने कहा यार पैन नंबर भी सबका अलग अलग होता है, और पैन नंबर में भी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। एंड सिमिलरली अब किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का टैक्स हर साल कंपनी काट रही है, तो ऑब्वियसली उसका पैन नंबर, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट हमने कहा यार अकाउंट नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि अकाउंट नंबर भी सारे एम्प्लॉयज का अलग अलग ही होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जैसे सपोज मान लिया एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा था और इफ ही लेफ्ट द कंपनी, सो हम वो अकाउंट नंबर किसी दूसरे को असाइन कर दे, नहीं, वो नहीं हो सकता। तो बेसिकली अकाउंट नंबर सारे एम्प्लॉयज का अलग ही होगा, और ऑब्वियसली वो खाली भी नहीं रह सकता, बिकॉज अल्टीमेट अगर वो अकाउंट नंबर में हम डेटा नहीं डालेंगे तो अल्टीमेट एम्प्लॉय की सैलरी जाएगी किस अकाउंट में। ठीक है, सो जब हमने सोचा तो हमने देखा कि यार दीज ऑल फोर फील्ड्स कैन बिकम अ प्राइमरी की। तो हमने जो प्राइमरी की के लिए जो हमारे लिए जो एलिजिबिलिटी थी कि भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होनी चाहिए एंड वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली ये चारों फील्ड्स प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं। सो इस ग्रुप ऑफ फील्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज कैंडिडेट की, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैंडिडेट की? द ग्रुप ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, these are, you know that attribute is basically the columns present in the table. So obviously the group of all attributes या fields, जैसे ये e code, account number, pan, pf number, this is a group. The group of all the attributes या fields which were eligible to become a primary key is known as candidate key. So basically क्या है कि उन सारी fields का group जो कि primary key बनने के लिए eligible है, we call that group of fields as the candidate key. Okay, so ये decide हो गया कि yes, candidate key basically क्या हो गया, it's basically the group of all the fields which are eligible to become a primary key, जिसको हम primary key बनने के लिए जो eligible हैं, they are known as the candidate key, right? But अब हमें ये दिख गया कि भाई चार हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स हैं जो बेसिकली कैंडिडेट सॉरी प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इन अ टेबल देयर इज ओनली वन प्राइमरी की, एक ही प्राइमरी की हो सकती है, नॉट मोर देन वन। सो obviously out of these four fields we have to select any one field. So we have selected e code as a primary key. So हमने डिसाइड किया कि भाई e code को हम प्राइमरी की ले लेंगे, but what about all these three fields? So basically, when we have decided that E code is taken as the primary key in this table, then all the rest of the candidate key will act as an alternate key. Okay? So basically, out of these candidate keys, we decided E code to be the primary key. So the all the rest of the three fields are become the alternate key. Okay? So account number, PF number, PAN number, they are known as the alternate key. So basically why we call them as alternate, because if you don't know the E code of any particular employee, then obviously we can search his record either on the basis of his account number or PF number or PAN number also, because ये सारी भी fields के अंदर भी क्या होगा, duplicate data तो होगा नहीं, और सब fields में data होगा ही होगा। तो ये तो सारी primary key के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो तीनों फील्ड्स में भी है ना। सो अगर सपोज मान लो इफ आई डोंट हैव द एम्प्लॉय कोड ऑफ एनी एम्प्लॉय, तो कोई बात नहीं, आई कैन सर्च हिज रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविडेंट फंड नंबर आल्सो,
I can search his record on the basis of account number also. ठीक है, PAN number also. So that's why they are called as the alternate key. So what is the definition of alternate key? Now, all the candidate keys except the primary key is known as alternate key. So remember one thing, while writing the definition of alternate key, the word candidate keys is compulsory. ठीक है, you can't ignore this word candidate key, because alternate keys कहां से निकल रही हैं? Candidate keys में से ही निकल रही हैं ना. So remember one thing, whenever you write the definition of the alternate key, specify this word, that all the candidate keys except the primary key is known as alternate key, right? So basically this is the definition of alternate key. Now we have covered three constraints. One is the primary key, second one is the candidate key, and the third one is the alternate key. Now we move to the next constraint, and that constraint is foreign key. अच्छा, ये foreign key जो है basically बहुत important है, ठीक है. और सो मैंने एक एग्जांपल लेकर इस पर्टिकुलर फॉरेन की के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है. सो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. सपोज अब हमने वी हैव टेकन एग्जांपल, मान लो कि हमारे पास एक टेबल है, द नेम ऑफ द टेबल इज कोर्स, एंड दिस कोर्स टेबल कंटेन्स थ्री फील्ड्स, कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड ड्यूरेशन, एंड द डेटा ऑफ ऑल द कोर्सेज आर रिटन ओवर हियर. ठीक है, तो जैसे सपोज मान लीजिए कोई कॉलेज है जो बेसिकली ये 4 कोर्सेज कंडक्ट करता है. सो दे हैव क्रिएटेड अ टेबल फॉर मेंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ ऑल द कोर्सेज जो कि उस कॉलेज के अंदर चल रहे हैं. ठीक है, अच्छा, तो एक टेबल बन गया हमारा कोर्सेज के नाम से, विच कंटेन्स दीज 3 फील्ड्स. अच्छा, अब टेबल जब बनाएंगे तो ऑब्वियसली प्राइमरी की तो रखेंगे. सो हमने इस टेबल के अंदर कोर्स आईडी को एज अ प्राइमरी की चूज कर लिया. ठीक है, सो एक टेबल हमारा तैयार हो गया जिसके अंदर कोर्स आईडी, कोर्स नेम, ड्यूरेशन है, एंड कोर्स आईडी को वी हैव टेकन एज द प्राइमरी की. अच्छा, सपोज देयर इज वन मोर टेबल and the name of the table is student. ठीक है, अच्छा, in this table we are going to store the information of student, like the roll number of the student, the name of the student, and the phone number of the student. So हमने ये डेटा मेंटेन करके रखा हुआ है. Now, और इसमें भी हमने ऑब्वियसली रोल नंबर को प्राइमरी की बना रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली टेबल बनाया है तो वी हैव टू सेट अ प्राइमरी की ऑल्सो. अच्छा जी, so now the scenario is clear कि भाई we have a table, one is courses and the other table is student, and the fields in courses are course ID, course name, duration, and student, roll number, name, and phone number, right? And course ID and roll number are the primary keys in both the tables. Now, अब क्या होता है कि suppose if someone wants कि भाई यार ये BCA कोर्स के अंदर इनमें से कौन कौन से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, he want to know that कि स्टूडेंट्स का नाम बताओ. So when I see this student table, तो मैंने कहा यार ये स्टूडेंट टेबल को जब मैंने देखा तो इसको देखकर मैं ये तो आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ कि यार बीसीए कोर्स के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं. क्या वैभव बीसीए कोर्स में है, क्या उमेश है, कार्तिक है, कृति है? आई डोंट नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि बीसीए कोर्स में पढ़ रहे हैं, बिकॉज इस टेबल के अंदर देयर इज नो इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे, जिससे मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स के अंदर पढ़ रहा है. तो ऑब्वियसली अगर इसके अंदर कोई ऐसी पर्टिकुलर फील्ड होती जिससे मैं लिंक कर सकता, जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता कि यार कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में पढ़ रहा है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि यस कौन कौन से स्टूडेंट्स बीसीए कोर्स में हैं. बट राइट नाउ इस टेबल के अंदर कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिससे कि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि भैया कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में है, बिकॉज इस टेबल के अंदर कोर्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी. अच्छा, अब मैंने क्या करा, इस टेबल के अंदर एक नई फील्ड ऐड करी जिसका नाम मैंने रख दिया कोर्स आईडी. ठीक है, और मैंने ये सोच के रखा कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्स आईडी हम यहाँ पे एंटर करेंगे. तो जैसे सपोज हमने वैभव का कोर्स आईडी C101, C102, C103 और कृति का भी C101 कोर्स आईडी है. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा फील्ड हमने इसके अंदर ऐड कर दी. अच्छा, अब क्या हुआ, इसको ऐड करने के बाद अब मुझसे कोई पूछेगा कि भाई टेल मी द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हु बेसिकली स्टडी इन द बीसीए कोर्स, तो मैं सीधा स्टूडेंट कोर्सेज वाले टेबल को रेफर करूंगा और वी विल सी दैट द कोर्स आईडी ऑफ बीसीए इज C101, राइट? सो C101 is the course ID of BCA.
सो जब मैं C101 को यहाँ पे टैली करना शुरू करूंगा तो एक C101 की एंट्री मुझे यहाँ मिली एंड द नेक्स्ट एंट्री ऑफ C101 इज ओवर देयर. सो यहां से मैंने आइडेंटिफाई किया कि यार एक स्टूडेंट है वैभव, ही इज स्टडिंग इन द BCA कोर्स एंड देयर इज वन स्टूडेंट नेम एज कृति, शी इज आल्सो स्टडिंग इन द BCA कोर्स. तो मैंने यहां से इंफॉर्मेशन निकाल ली कि यस, वैभव एंड कृति आर द टू स्टूडेंट्स जो कि BCA कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी. अच्छा, अब क्या हुआ कि अब जैसे मैं लोगों के रिकॉर्ड एंटर कर रहा था, अब मैंने एक नया रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर किया, तरुण का. अच्छा, अब इस तरुण के रिकॉर्ड को एंटर करते वक्त मेरे से गलती से कोर्स आईडी में डल गया C107. आपको क्या लगता है, क्या ये रिकॉर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए C107 की नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली आपके माइंड में ये बात आएगी कि यस यार, C107 इज not be accepted because there is no course ID by the name of C107. So when there is no course ID by the name of C107, then how this record can be inserted? Because C107 is not allotted to any course. हाँ भाई, obviously लग ही रहा है यार C107 तो किसी कोर्स में है ही नहीं. But you know, अभी राइट नाउ क्या होगा कि C107 वाला ये रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा इस टेबल के अंदर और कोई एरर भी नहीं आएगी. अब हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये C107 वाला रिकॉर्ड एंटर क्यों जा रहा है, बल्कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज नो रिकॉर्ड हुज कोर्स आईडी इज C107. सो हाउ दिस रिकॉर्ड इज एक्सेप्टेड? अब एक चीज सिंपल सी बताऊं मुझे, भाई कोर्सेज नाम का एक अलग टेबल है एंड वी हैव अ सेपरेट टेबल बाय द नेम ऑफ स्टूडेंट. और स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने करा क्या यार, एक फील्ड ऐड कर दी जिसका नाम मैंने कोर्स आईडी रखा, दैट्स इट. इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता था, ABC रख सकता था, XYZ रख सकता था. तो मैंने यहाँ पे कोई ऐसी लिमिटेशन थोड़ा ना डाली कि भाई कोर्स आईडी के अंदर वही वैल्यूज आए जो यहाँ पे डली हुई है. नहीं, कोर्स आईडी के अंदर तो कुछ भी डाल सकता हूं मैं, ABCD भी डाल सकता हूँ, अमित भी डाल सकता हूँ, अंकुर भी डाल सकता हूँ, कुछ भी नाम डाल सकता हूँ. कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर थोड़ी ना है. तो यहाँ पे मैं तो C107 भी डाल सकता हूँ, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर फील्ड का जो कोर्स आईडी फील्ड है, इसका इस कोर्सेस टेबल की कोर्स आईडी फील्ड से अभी कुछ लेना देना नहीं है. अच्छा, तो हमने कहा हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो अगर सपोज मान लीजिए अब मैं क्या करता हूं, आई विल लिंक दीज टू फील्ड्स. ठीक है, मैंने क्या किया कि इस कोर्स आईडी टेबल, जो बेसिकली कोर्सेस की जो ये कोर्स आईडी टेबल है, इस फील्ड को मैंने लिंक कर दिया किससे, इस टेबल की कोर्स आईडी फील्ड से. और जब मैंने इसको इस टेबल की कोर्स आईडी फील्ड के साथ लिंक कर दिया, सो रिलेशनशिप जब इन दोनों के बीच में बन गया, सो दिस फील्ड इज नोन एज द फॉरेन की. और वंस दिस रिलेशनशिप इज established, so this field become foreign key. Now this C107 record will not be accepted. Okay, the C107 record will not be accepted. Why? Because अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन गया. सो अब रिलेशनशिप बनने के बाद अब ये जो कोर्स आईडी है will allow only those values which are present in this table. Okay, सो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा प्राइमरी टेबल हो गया. और ये एक तरह से सपोज मान लो अपना सेकेंडरी टेबल, या ये मान लो इसको अगर हम पेरेंट टेबल कह रहे हैं तो दिस इज अ चाइल्ड टेबल. सो ऑब्वियसली कोर्स आईडी के अंदर वही डेटा एंटर हो पाएगा जो यहाँ पे अंदर दे रखा हो. ठीक है जी. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन की. सो फॉरेन की का मतलब क्या है, इट इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे ये कोर्स आईडी है, दिस इज नॉट अ प्राइमरी की. ये कोर्स आईडी जो है यहाँ पे, इट इज नॉट अ प्राइमरी की. सो इसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज, इस को हम कहेंगे इट इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. राइट, इट इज अ कोर्स आईडी इज नॉट अ प्राइमरी की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. सो it is a non-prime attribute whose values are obtained from the primary key, whose values are obtained from the primary key of some other table. ठीक है जी. सो हमें क्या पता लगा फॉरेन की डेफिनेशन में, दैट इट इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट whose values are obtained from the primary key of some other table. So that is known as the foreign key in its current table. Okay, तो बेसिकली
फॉरेन की क्या हो गई हमारे पास, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो अपनी वैल्यूज कहां से ऑब्टेन करेगा, प्राइमरी की से, जो दूसरे टेबल से वो लिंक्ड हो रखा है उससे ऑब्टेन करेगा। ठीक है जी। सो बेसिकली दीज आर सम की कॉन्स्ट्रेंट्स जो हमने पढ़े। नाउ अब एक और छोटा सा टॉपिक हमारे पास आ रहा है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में हम लोगों ने समझना है कि क्या होता है और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रिटी का मतलब एक तरह से हो गया हमारा यूनिकनेस। ठीक है, अब जरा इस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझते हैं हम जरा विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। अब देखो, अभी हमने पिछले एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने इस कंसेप्ट को पढ़ा था, ये रिलेशनशिप प्राइमरी की फॉरेन की। अब सपोज मान लो ये रिलेशनशिप लगी हुई है, ठीक है, हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दी बिटवीन दीज टू टेबल्स। So once this relationship established between these two tables, so these two tables maintain the referential integrity, यानी कि इनके relationship की integrity, uniqueness को ये maintain करेंगे। How? So सबसे पहले देखिए what is the referential integrity? So referential integrity is basically a system of rules. Referential integrity क्या है? Is basically a system of rules that DBMS uses to ensure that the relationship between records in the related tables are valid. ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बेसिकली क्या है, देयर आर सम रूल्स। ठीक है, अब होता क्या है, ये रूल्स क्या क्या इंश्योर करते हैं कि जो दो टेबल्स है जिनके बीच में हमने रिलेशनशिप बनाई है, तो उनके रिलेशनशिप की जो लिमिटेशंस है, कंडीशंस हैं, वो मेंटेन रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी भी कारण से वो रिलेशनशिप की जो कंडीशंस है वो खराब हो जाए। अब जैसे क्या मतलब है इसमें, देखो यहाँ पे रेफरेंशियल, अब हमने बोला ना सिस्टम ऑफ रूल्स, तो अब हम वही जानना चाहते हैं कि क्या रूल्स हो गए। अब हम सपोज इन दोनों टेबल्स को रेफर करके काम कर रहे हैं, तो पहला, जब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन गई, तो पहला रूल इनके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो गया, देखो पहला रूल ये कहता है, अ वैल्यू इन अ फॉरेन की कैन नॉट बी एक्सेप्टेड if its related value is not present in the primary key of its related table। ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज मान लो ये जैसे हमारे पास ये फॉरेन की है ना, ठीक है, ये फील्ड, तो ऑब्वियस बात है इस फील्ड के अंदर वही वैल्यूज अलाउड होंगी जो यहां के प्राइमरी की के अंदर दे रखी हैं। ठीक है जी, जो इस टेबल के प्राइमरी की के अंदर जो वैल्यूज दे रखी हैं वही वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट होंगी। अब मान लो इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्टूडेंट टेबल के अंदर कोई भी नया रिकॉर्ड एंटर करूंगा, तो उस रिकॉर्ड को वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसके कोर्स आईडी में वही वैल्यू डली हो जो यहाँ पे मौजूद हो। अगर इसके अलावा मैं कोई और वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो उस रिकॉर्ड को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी बोला अ वैल्यू इन अ फॉरेन की कैन नॉट बी एक्सेप्टेड if its related value is not present in the primary key of its related table। तो भैया जो वैल्यूज इसके प्राइमरी की के अंदर अवेलेबल नहीं है, सो दैट वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेड इन इट। ठीक है, सो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज a record from the primary table cannot be deleted if its related record is present in the related table। Now what does it means? अब सपोज मान लो क्या होता है कि मैं कहता हूं कि मुझे ये बीबीए कोर्स डिलीट करना है। ठीक है, इफ आई डिसाइडेड कि भाई चलो ये बीबीए वाला जो कोर्स है मैं डिलीट कर देता हूँ, तो अब मैं इस टेबल में से ये बीबीए का कोर्स डिलीट करने की सोच रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा सिस्टम विल शो मी एन एरर और वो मुझे इसे डिलीट नहीं करने देगा। वाई? वो इसलिए डिलीट नहीं करने देगा कि भाई मैं यहाँ से C102 कैसे डिलीट कर सकता हूँ, बिकॉज देर इज अ स्टूडेंट नेम एज उमेश हु इज स्टडिंग इन द कोर्स C102। सो भाई अगर मैं यहाँ से कोर्स हटा दूं, ये C1, ये सपोज मान लो बीसीए का कोर्स, बीबीए का कोर्स अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, तो ऐसे कैसे होगा भाई, यहाँ से कोर्स हट गया है और यहाँ पे उमेश है जो स्टिल उस कोर्स के अंदर पढ़ रहा है, तो ये तो बेसिकली जो डेटा की यूनिकनेस है, इंटीग्रिटी है, वो तो ब्रेक हो रही है ना। ठीक है, सो अगर ये डिलीट हो गया यहाँ से तो प्रॉब्लम बन जाएगी, तो दैट्स व्हाई वो सिस्टम उसको डिलीट करने ही नहीं देगा। वो कहेगा नहीं भाई, वी कांट डिलीट दिस रिकॉर्ड बिकॉज a related value of this record is present in the other table। जैसे उमेश जो है वो C102 रिकॉर्ड कोर्स में पढ़ रहा है, so we can't delete the C102 कोर्स। तो यही बोला, a record from the primary table, ये प्राइमरी टेबल,
कैन नॉट बी डिलीटेड। इस प्राइमरी टेबल में से मैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता अगर इफ इट्स रिलेटेड रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द रिलेटेड टेबल, अगर इससे रिलेटेड कोई डेटा इफ इसके रिलेटेड टेबल के अंदर मौजूद है तो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से C102 का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूं, सो आई कांट डिलीट इट, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ स्टूडेंट नेम इज उमेश हु इज स्टिल स्टडीइंग इन द C102 कोर्स। मैं उसको रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता। अगर मुझे करना भी है तो पहले मुझे इस टेबल में से सारे C102 के रिकॉर्ड रिमूव करने पड़ेंगे, तब जाके मैं कर सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट the value of the primary key field cannot be changed। अब देखो प्राइमरी की फील्ड कौन सी है हमारे पास, ये कोर्स आईडी ना प्राइमरी की फील्ड। अब सपोज मान लो मेरा मन करा कि यार इस कोर्स का आईडी C104 है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये सर C103 लेते हैं कि इस कोर्स का आईडी C103 है। सपोज मैंने मेरा मन किया कि इसका आईडी चेंज कर दूं, कोर्स आईडी हम चेंज कर देते हैं। तो सपोज मैंने बोला इसका कोर्स आईडी रख दो C03। ठीक है, इसका कोर्स आईडी हम क्या रखने की सोच रहे हैं, C03। तो बेसिकली अगर हम इसको आईडी C03 करना चाहेंगे तो वी कांट डू दैट। व्हाई? सिंपल सी बात है यार, देयर इज अ रिकॉर्ड C103 ओवर हियर। अगर मैंने उसको अपडेट कर दिया, इसको C103 से C03 कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे अब C103 की एंट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे तो C103 डला हुआ है ना। सो यहाँ पे बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी चेंज, यानी कि इस प्राइमरी की फील्ड को हम चेंज नहीं कर सकते इफ its related record is present in the related table। So basically आप देख सकते हैं कि once we establish the relationship between these two tables, so these rules are applicable on these tables। ठीक है, so this is known as the referential integrity। ठीक है, I think it is clear that what is the referential integrity। so once we establish the relationship between these two tables, तो उसके बाद फिर क्या होता है, उन टेबल्स के ऊपर ये सेट ऑफ रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। सो हमें इन रूल्स को के अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और ये रूल्स जो हैं ये क्या है हमारे, ये मेंटेन करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी कि जो दो टेबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनी हुई है, वो रिलेशनशिप की जो इंटीग्रिटी है, जो यूनिकनेस है, जो वैलिडिटी है, वो मेंटेन रहे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर राइट नाउ। ओके, सो आज के लेक्चर में हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।